So let's begin with the new chapter today. Wave optics, one of the very interesting and important chapter. Okay, one of the very important and interesting chapter, wave optics. यहाँ पे आप लोगों ने इसके पहले जो 9th और 10th स्टैंडर्ड है उसमें आप लोगों ने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये पढ़ा था, राइट ना? Anybody tell me what is meant by the reflection? What is the difference in reflection and refraction? Difference between the reflection and refraction. Suppose this is the wall or this is the mirror. अगर ये mirror है and a ray of light is incident like this. This is the normal. Thank you for maintaining silence. Yeah. Reflection की अगर बात करें तो reflection मतलब वो यहाँ से reflect back होता है. This is called as incident ray and this is the reflected ray. Reflected ray. This is the normal. The angle between the incident ray and the normal is called as angle of incidence. The angle between the normal and the reflected ray is called as the angle of refraction. Angle of reflection. Angle of reflection. ठीक है? And then there are laws of reflection. We have already seen this, so I am just refreshing these things here. The incident ray, reflected ray and normal, they lie in the same plane, and the incident ray and reflected ray, they are on the either side of the normal. ये हमारा पहला law है. They are in the same plane. ठीक है? And the second one says, दूसरा वाला क्या बोलता है? The angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. So this is the reflection. Refraction की अगर मैं बात करूं, if I talk about the refraction, तो refraction ऐसा होता है कि भाई समझो ये है पानी. कहाँ से पानी हो गया ऐसे? नहीं. Suppose this is suppose this is water surface. Suppose this is the water surface और यहाँ पे एक normal है समझो. This is the normal and then some ray of light is incident here. Some ray of light is incident ऐसे. तो यहाँ से अंदर जाते समय, पानी के अंदर जाते समय it bends towards the normal. Now this phenomenon is called as the refraction. This phenomenon is called as refraction. This is the normal. So this is incident ray and this is refracted ray. Okay? This is refracted ray. Now this is the angle of incidence and this is the angle of refraction. दो दोनों same नहीं होते. Okay? Speed of light in the first medium is v1 and speed of light in the second medium is v2. The refractive index of the first medium is n1. Refractive index of the second medium is n2. Correct? So there are some laws of refraction. Okay? The incident ray, refracted ray and the normal to the boundary between the two media, they meet at the point of incidence and they are in the same plane. The incident ray and the refracted ray, they are on the either sides of the normal. समझे? This is the first law. Second law is called as Snell's law. N1 sin I is equal to N2 sin R. This we have already seen. We have already talked about. We have already done this. This was just for the sake of refreshing your basic concepts. Okay? ये हमारा सबसे पहले हो चुका था. तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर के अंदर है. यहाँ पर मैंने
इंट्रोडक्शन कर लिया है रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन इसके बारे में डिस्कस करके। लेट मी टेक दिस फर्दर, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है दिस टॉक्स अबाउट द रेक्टिलिनियर, टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ द लाइट, कि भाई लाइट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो लाइट हमेशा सीधा चलता है, वी कॉल दिस एज रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट रे। फॉर एग्जाम्पल अगर हाथ में आपने टॉर्च लिया, तो टॉर्च अगर ऐसा शुरू करते हैं तो वो लाइट जो होता है टॉर्च का वो सीधा ही चला जाएगा, ऐसे घूम के आपके पीछे नहीं जाता है लाइट कभी, नहीं ना। इट विल ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, वी कॉल दिस एज रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। और यहां पर एज्यूम करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इट इज एज्यूम दैट द लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, massless particles. Okay, this concept was further extended and it was Newton who proposed the corpuscular theory of light. Corpuscular nature of light was proposed by Newton. बाबा न्यूटन ने यह बताया था, लेकिन इसमें उसने कुछ गलती किए थे। न्यूटन हैड मेड सम मिस्टेक्स जो हम देखेंगे यहाँ पे। न्यूटन ने दो मिस्टेक्स करी थी फिजिक्स के अंदर, एक थी लाइट में और दूसरी थी साउंड में। क्या मिस्टेक है देखेंगे हम यहाँ पे। लाइट वाला मिस्टेक यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, या इट वाज अ मिस्टेक, उसको करेक्ट किया गया बाद में, लेटर ऑन इट वाज करेक्टेड। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। तो यहाँ पे this concept was further proposed and made. Light is made up of particles, we call these particles as corpuscles, corpuscles, whatever, corpuscles. What are these? These are hard, elastic and massless particles which are very small in size. पहले उसको कार्पसल्स बोला गया था, लेकिन जब तू बोल रहा है वो सही है, फोटॉन्स को बाद में, दैट वाज द मॉडिफाइड थियोरी, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक थियोरी व्हिच वाज गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन का इस थियोरी को फिर बाद में करेक्ट किया गया, ठीक है। पहले जो था इस लाइट को पहले एज्यूम किया गया दैट लाइट इज इन द, सो इट वाज द फर्स्ट ऑफ, पहली थियोरी थी जो न्यूटन ने दी थी। देयर द लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं कार्पसल्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट। लेकिन सारी चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट इट कुड एक्सप्लेन। रेक्टिलिनियर मतलब सीधे लाइन में चले जाना, ये जो लाइट का प्रॉपर्टी है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, इट कुड बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थियरी। लेकिन 19th सेंचुरी की शुरुआत में, 20th सेंचुरी के शुरुआत में there were some new phenomena of light that were discovered, like interference, diffraction and polarization. In fact ये तीनों फिनोमेना हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से जो है, 4 इंपॉर्टेंट हिस्से, उसमें से 3 हिस्से यही है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। These phenomena could not be explained by Newton's corpuscular theory. तो न्यूटन के बाद देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड हाइजिन, और हाइजिन ने लाइट को वेव नेचर में एक्सप्लेन किया। ही सेड नो, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ही सेड द लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। बाद में यहां पर और एक थियरी आया। कौन सा थियरी आया? इट वाज मैक्स प्लैंक का थियरी आया। इट वाज मैक्स प्लैंक्स थियरी, जिसमें दोबारा लाइट को इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच वेर कॉल्ड एज फोटॉन्स, ये बोला। मतलब पहले पार्टिकल, फिर वेव, फिर दोबारा पार्टिकल, ठीक है। इसके बाद अगला थियरी आया था आइंस्टाइन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, मैक्सवेल्स थियरी, एक्चुअली मैक्सवेल्स थियरी, जिसमें
he assumed that it is in the form of electromagnetic waves, मतलब पार्टिकल्स, वेव्स, फिर पार्टिकल्स, फिर वेव्स, ठीक है। और इस थियोरी को सपोर्ट किया एल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटिविटी थियोरी ने, ठीक है। तो इसके बाद जो नया थियोरी आया वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का आया, ठीक है। डी ब्रॉगली इसी टाइम पे आया था, फोटोन के टाइम पे डी ब्रॉगली भी आया था। इट वाज मोर और लेस एट द टाइम ऑफ फोटोन ओनली। तो अब फिलहाल क्या नेचर है लाइट, क्या वो पार्टिकल नेचर है या, तो राइट नाउ इट इज सेड दैट द लाइट इज इन द ड्यूअल नेचर, इट हैज गॉट द ड्यूअल नेचर। ड्यूअल बोले तो वो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। In short, they say that it is in the form of wavicles. Is that clear? It is the dual nature of light. This is the present theory. तो light जैसे चाहे वो वाला रूप ले सकता है as per the need. अच्छा वेव चाहिए, ले लो मैं वेव बन गया। अच्छा पार्टिकल चाहिए, ले लो मैं पार्टिकल बन गया। It can take any form. It can take any form. Is that clear? तो हम शुरुआती दौर में क्या बताया गया था वो अभी हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद फिर हाइजिन ने उसका वेव थियरी दिया था। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टू थिंग्स। ये हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे, बाकी ये हम डिटेल में देखेंगे। फिर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन भी हम डिटेल में देखने वाले हैं इस चैप्टर में। बाद में 17th चैप्टर में, इन द 17th चैप्टर हम आगे जाके ये उसका एल्बर्ट आइंस्टाइन के इक्वेशंस भी देखने वाले हैं। हाँ 17 चैप्टर में शायद हम 13 चैप्टर जो भी है, मैक्स प्लैंक्स का फोटोन थियरी भी हम देखने वाले हैं। इट इज आई थिंक व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर देयर, या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इट इज 14th चैप्टर। तो उसमें हम फोटॉन्स और so this is what we are going to see in this chapter basically। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन किया और यहाँ पर मैं न्यूटन्स वेव थियरी इन शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, विच इज गिवन इन, ये सब चीजें मैंने नोटबुक टेक्स्ट बुक से ही उठाई हुई है। इट्स ओनली दैट आई हैव गिवन दिस इन द पॉइंट वाइज फॉर्म, आपको आसानी हो जाएगी इसके लिए मैंने उसको पॉइंट वाइज फॉर्म में देने की कोशिश करी है। सो कार्पेसल्स आर द हार्ड इलास्टिक टाइनी पार्टिकल्स विच आर massless, they do not have mass, they are elastic in nature. Source of light emits corpuscles, okay, and they travel along the straight line in the absence of any external force। मतलब जैसे हम बैटरी शुरू करते हैं तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बेसिकली वो बोला कि उसके अंदर कार्पसल्स होते हैं, and these are the corpuscles which are traveling, these are massless particles, tiny particles, elastic particles, they are traveling in the straight line in the absence of any force। ठीक है, ऐसा नहीं कि पार्टिकल है तो ऐसा जाते जाते, ऐसा आपने कभी देखा है लाइट जो है, लाइट का फोकस ऐसे ही नीचे गया, जैसे अगर मैं पत्थर फेंकता हूं तो इट विल गो लाइक दिस ना, तो लाइट ऐसे कभी जाता है क्या नीचे? नहीं ना, इट विल ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, करेक्ट ना, isn't it? So and he said that different colors of light are because of the different sizes of the corpuscles। different color, लाइट का कलर डिफरेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइजेस। When these corpuscles they enter the human eye, they strike on the retina of the eye to create the sensation of the light। तब अपने को पता चल गया हाँ ये लाइट है, ये ग्रीन कलर का लाइट है। तब अपने को ऐसा न्यूटन बाबा बोला। दिस इज ऑल व्हाट न्यूटन सेड। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है। So with this they are strike the reflecting surface, they undergo the elastic collision। अब ये लाइट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर मिरर पर गिर जाता है तो वहां पर these corpuscles being elastic they collide and it undergoes elastic collision। You know what is elastic collision? It's a conservation of momentum and energy is there। They undergo elastic collision and as a result of they follow the laws of reflection। रिफ्रैक्शन में उसने गड़बड़ कर दिया। रिफ्लेक्शन बराबर एक्सप्लेन कर दिया इसने। रिफ्रैक्शन में वो क्या बोला कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इट इज द डिफरेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कार्पसल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मतलब जब लाइट इसके ऊपर आके गिर रहा है, सपोज रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन इट विल टेक प्लेस इन एनी ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम।
लाइक ग्लास, वाटर, वहां पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर. करेक्ट ना? तो जब द पार्टिकल्स मतलब दीज कार्पसेल्स दे आर हिटिंग द मीडियम, तो वहां पर देयर इज डिफरेंस इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब ये जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो इस कार्पसेल्स को डिफरेंट फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं. दिस इज व्हाट ही सेड. ठीक है. उसने क्या बताया कि डेंसर मीडियम में क्या होता है, द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन लाइट कार्पसेल्स इज लार्ज. डेंसर मीडियम क्या करता है, ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट करता है. ठीक है. और रेयरर मीडियम कम. दिस इज व्हाट ही सेड. तो रेयरर मीडियम में क्या होता है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि डेंसर मीडियम अगर उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मोर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो लाइट विल ट्रैवल फास्टर इन द डेंसर मीडियम. यस और नो? रेयरर मीडियम में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इट विल ट्रैवल स्लोली इन द रेयर मीडियम. और यही गलती कर बैठे हैं. मिस्टेक हो गया उनका. इज दैट क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी, द स्पीड ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम विल बी more as compared to the rare medium. But what is the fact that you told me just before a while? रेयर मीडियम में फास्ट भागेगा, तुम भी भागेगा फास्ट और लाइट भी भागेगा फास्ट. यस और नो? तो यही मिस्टेक हुआ उनका. दिस वाज मिस्टेक. ओके. इन दिस थियरी डिफरेंट कलर्स करस्पॉन्ड टू कार्पसेल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. उसका साइज अलग होएगा तो कलर अलग होएगा, कलर लाइट का. ठीक है. न्यूटन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए बेस्ड ऑन हिज थियरी द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेना. तो बाकी सारी चीजें उसने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया. इज दैट क्लियर? तो इसमें जब हम बोलते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट. तो इसमें वी से दैट द लाइट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ रे. इसीलिए इस चैप्टर का नाम था रे ऑप्टिक्स. और वी ऑल्सो कॉल दिस एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एज द ज्योमेट्री इज यूज्ड इन दिस स्टडी. ज्योमेट्री हमने यूज किया ना, हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करते थे मिरर्स के लिए, लेंसेस के लिए. जो लास्ट ईयर हमारा जो चैप्टर था नाम था वो था रे ऑप्टिक्स, जहां पर हमने लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन एज्यूम किया. रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन मतलब द लाइट इज एज्यूम टू बी इन द पार्टिकल फॉर्म. इज दिस क्लियर? इज दैट क्लियर? इस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स. यहां पर हम लाइट को एज्यूम करेंगे एज अ वेव. इज दैट क्लियर? तो ये फ्लैशबैक था तुम्हारे पिछले साल की फिल्म का. क्रिश 1 हो गए, अब ये क्रिश 2 चालू हो रहा है. दिस इज ओके. सो नाउ द वेव नेचर ऑफ लाइट. ठीक है. वेव नेचर में 1968 में ये प्रपोज किया गया था. नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज हाइजिन. हाइजिन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. उसने बता दिया 1968 में कि भाई लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव. ठीक है. अब ये वेव कैसे, वेव जब तैयार होता है तो वेव जब आता है, अगर एक हम स्ट्रिंग ले ले उसके ऊपर वेव तैयार करें तो पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग दे आर हैविंग वाइब्रेटरी मोशन. व्हेन द वेव इज देयर ऑन द वाटर सरफेस, तो वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर हैविंग द वाइब्रेटरी मोशन. तो इस वाइब्रेटरी मोशन के चलते वेव आगे ट्रांसमिट होता है. यस और नो? समझ में आ रहा है? ठीक है. हाइजेन assumed that the light to be a wave caused by the vibrations of the particles of the medium. मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं. As light could also travel in the vacuum. बाबा लोग बोले कि हाँ ठीक है ये चल रहा है, लेकिन वैक्यूम में भी तो लाइट होता है. तो बोलता नहीं 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 नहीं, वो वैक्यूम नहीं होता. उसने वहां पर एक हाइपोथेटिकल मीडियम बता दिया. He said that vacuum नहीं होता actually, there is a hypothetical medium. He said that he called this hypothetical medium as ether. Please note that acids, esters और ethers जो होते हैं केमिस्ट्री के, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. उसने बस उसको नाम दे दिया पिंटू, ईथर, चिंटू. he just called it as a name. और आगे जाके all the experimentations to prove the existence of this ether were failed. तो ऐसा कोई मीडियम नहीं होता है. ठीक है. उसने बता दिया कि बाबा ये होता है वेव, लेकिन इस थियोरी को आगे और फर्दर
करेक्ट किया गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियोरी। उसने सिर्फ वेव बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है यह बाद में हमने देखा, ठीक है। He assumed that the hypothetical medium called as ether is present everywhere. It has nothing to do. No evidence was found to prove the existence वगैरह वगैरह, ठीक है। 19th century में, in the 19th century, certain new phenomena, जैसे मैंने बताया interference, diffraction and the polarization in the beginning of 19th century, मतलब 1865 वगैरह, तभी तो ये दिया गया था, जिसमें कार्पस्कुलर थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन दीज मैकेनिज्म्स, नहीं एक्सप्लेन कर सका, तो इसलिए वहां पर दूसरा थियरी दिया जिसमें क्योंकि यहां पर ये वाला जो थियरी था जैसे मैंने बताया, तो यहां पर इसलिए वेव नेचर ऑफ लाइट वाज पुट फोर्थ एंड इट वाज एक्सेप्टेड। इसमें ऑप्टिकल फिनोमिना जो होते हैं उस हम वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए उसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? मैक्सवेल जो होता है, मैक्सवेल के इक्वेशंस हमने 11th स्टैंडर्ड में देखे थे इन द चैप्टर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें he said that light is in the form of electromagnetic waves, the existence of radio waves। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब क्या होते हैं, लेट मी टेल यू कि बार जो लाइट होता है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी देखा था लास्ट ईयर, थोड़ा बहुत देखा था कि अगर ये एक वेव है, सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंप्राइजिंग ऑफ टू थिंग्स। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? उसके पास पहली चीज क्या होती है? पहली चीज होता है इट हैज गॉट एन इलेक्ट्रिकल वेव, द वेव विच इज कंटेनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट होता है इसके अंदर, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कॉल दिस एज ई बार। एंड इसके साथ ही चलने वाला और एक वेव होता है विच गोज हैंड इन हैंड विद दिस वेव, लेकिन इसको ये एट राइट एंगल्स परपेंडिकुलर होता है, ये वेव समझ में आ गया क्या? ऐसे होता है, परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, और यहां पर होता है मैग्नेटिक फील्ड। So this is electric field, this is magnetic field, they are mutually perpendicular and this is the direction of propagation of the wave. This is the direction of propagation of the wave. तो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। सो ये दोनों जो फील्ड्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, जस्ट लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। So this is called as electromagnetic wave. This we have seen in the last year's chapter, 11th standard का जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको और ज्यादा डिटेल्स में हम देखेंगे आगे बढ़ के। अब हम देखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इन द अर्ली 20th century it is assumed that the light is in the form of wave as well as particles, तो उसको हम ड्यूअल नेचर कहते हैं, ठीक है। वेव नेचर के अंदर कुछ फिनोमिना हम एक्सप्लेन करते हैं और पार्टिकल नेचर के अंदर कुछ फिनोमिना हम एक्सप्लेन करते हैं। तेरे को नींद आ रही है? स्टैंड अप प्लीज। इन लोगों को समझ में आ गया है, वो खड़े हो गए, स्टैंड अप। अब ये देखो ऐसा होता है, थोड़ा थियोरी पार्ट होता है तो ऐसा हो ही जाता है, तो थोड़ा सा यू हैव टू एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ लाइट एज ए वेव क्या होता है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स क्या होता है जी? What is meant by transverse? नहीं, which is made up of crest and trough, इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? लॉन्जिट्यूडिनल, which is made up of compressions and rarefactions, spring waves, है ना? Okay, and they are consisting of oscillating electric and magnetic fields, जो अभी मैंने आपको बता दिया, okay, which are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of wave, ठीक है। These waves do not require any medium, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। They travel in the vacuum, they travel in the vacuum and in any medium also, लेकिन उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। This is the wave theory. The speed of light in the medium depends upon the refractive index of the medium, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। In which, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी के ऊपर नहीं डिपेंड करता हूं। अगर आप C का वैल्यू देखते हो, C का वैल्यू, इट डिपेंड्स अपॉन C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, ठीक है। इसमें आपको एप्सिलॉन 0 का वैल्यू याद है क्या है, और म्यू 0 का वैल्यू याद है क्या है?
म्यू 0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, है ना, एंड एप्सिलॉन 0 इज करेक्ट 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻12, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन 0 अपॉन म्यू 0। चेक करिएगा वही आंसर आएगा, चेक करिएगा वही आंसर आएगा। सो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन दिस। दिस इज फॉर वैक्यूम, सुनना, दिस इज फॉर वैक्यूम। इफ दिस इज एनी अदर मीडियम तो दिस विल बिकम एप्सिलॉन फॉर द मीडियम एंड म्यू फॉर द मीडियम। व्हाट इज म्यू? म्यू इज कॉल्ड एज द, व्हाट इज एप्सिलॉन 0? एप्सिलॉन 0 कौन से वाले इसमें आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। एप्सिलॉन 0 कम्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, करेक्ट। एप्सिलॉन 0 comes in electric field. Force of attraction or repulsion between the two charges is given by 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square. Yes or no? So this is permittivity of the medium. Permittivity. Epsilon 0 is the permittivity. Correct? And mu 0 कहां पर आता है? मैं आपको बता दूं, Biot-Savart law में आता है। The magnetic induction at any point is given by dB is equal to mu 0 upon 4 pi IDL sin theta upon r square. This is mu 0. Permeability. So speed of light in any medium depends upon the refractive index, and the refractive index in turn depends upon the permittivity and permeability of the medium. Did you understand? Permittivity and permeability, epsilon 0 mu 0. Is this okay? Proceed. Next question, next point. The refractive index is equal to, अभी ये refractive index, ये एक C का formula है. The refractive index of any medium, if I want to write down about the refractive index of any medium, the refractive index of any medium is given by refractive index of any medium is given by C is equal to N is equal to it is the speed of light in the vacuum upon speed of light in that medium. बराबर है ना, करेक्ट ना। तो इस वजह से दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, वी कॉल दिस एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इस तरह से अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम चाहिए तो वो 1 होता है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. इज दिस ओके? इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आया सबको? ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसका स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेवलेंथ होता है उनका वेरी स्मॉल से लेकर वेरी लार्ज। स्मॉल मतलब 10⁻⁻15 मीटर तक हो सकता है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी। और वो वेवलेंथ जो होता है, दिस इज द वेवलेंथ लैम्बडा, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ अ वेव इज अ वेवलेंथ। तो इट इज वेरी स्मॉल से लेकर वेरी लार्ज, लार्ज मतलब वो किलोमीटर्स तक भी हो सकता है कई बार। सो इट हैज गॉट अ वेरी ह्यूज स्पेक्ट्रम, कम से लेकर ज्यादा तक। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाइनी वेव से लेकर वेरी लार्ज किलोमीटर्स तक, मतलब दिस लेंथ कैन बी 10 किलोमीटर्स तक हो सकता है, एंड इट कैन बी एज स्मॉल एज 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अब हमारा विजिबल लाइट जो होता है, विजिबल लाइट जो अपने को आंखों से दिखता है प्रॉपर, क्योंकि इसके अंदर होते हैं गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, देन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंफ्रारेड रेज, तो ये सब इसी के अंदर आते हैं। आपके मोबाइल के जो कम्युनिकेशन वेव्स होते हैं इसी के अंदर आते हैं। ऑल दीज वेव्स दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसी के अंदर आता है, ये हम लास्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी दिस इन द लास्ट चैप्टर। आपके टीवी के सिग्नल्स होते हैं, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, लोकल रेडियो सिग्नल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस के सिग्नल्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं। आपके ब्लूटूथ के जो सिग्नल्स होते हैं, इट इज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एवरीथिंग दिस इज कमिंग अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओवन होता है ना माइक्रोवेव, आपका माइक्रोवेव बोलते हैं ना, उसके अंदर भी वेव्स होते हैं। सो देयर आर सम वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, UV rays, infrared rays, everything is
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब कुछ वेव्स होते हैं जो अपने साथ हीट कैरी करते हैं, कुछ वेव्स होते हैं जो अपने साथ लाइट कैरी करते हैं, बट दे डू कैरी सम फॉर्म ऑफ एनर्जी विद देम, and when they are traveling from one place to the other place, so they are transporting this energy. This energy is in the form of data जो हम communication purpose के लिए use करते हैं. Are you understanding what I'm saying there? So ये जो waves होते हैं, these are basically the transporters, and they are transporting the energy from one place to the other place. This energy can be in the form of heat, this energy can be in the form of light, this energy can be in some other form also, like data के form में भी हो सकता है वो energy. Are you understanding what I'm saying there? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट एंड द एप्लीकेशन वी कैन चूज विच वेव इज टू बी यूज्ड देयर. आप एक्सरे वगैरह बनाते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ग्यामा रेज होते हैं रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अल्फा बीटा गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में इलेक्ट्रो, सब तुम्हारे मोबाइल सिग्नल, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, आप रिमोट से जो सिग्नल भेजते हो, रिमोट से वो चेंज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? सो अब हम उसमें से सिर्फ एक छोटा सा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसमें से छोटा सा हिस्सा जो हम विजिबल लाइट का है वो हम देखने वाले हैं. Are you understanding what I'm saying there? तो वो कितना छोटा सा होता है? बहुत छोटा सा हिस्सा है वो. 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक उसका रेंज होता है. ओके, 400 नैनोमीटर मतलब हमारा जो लाइट अपने को दिखता है वो इतना होता है. अब व्हाइट लाइट क्या होता है? व्हाइट लाइट इज कंप्राइजिंग ऑल दीज वेव्स, सारे कलर्स उसके अंदर आते हैं. सो द वेव्स विच आर हैविंग देयर वेवलेंथ of 400 नैनोमीटर, they are violet in color, और 700 नैनोमीटर को होते हैं वो रेड वाला कलर होता है. इससे ज्यादा वेवलेंथ होगा, कलर गायब. इससे कम आता है, हाँ, उसके इंफ्रारेड रीजन में, लेकिन वो दिखता नहीं है अपने को आसानी से, विजिबली दिखता नहीं है वो. ठीक है, और इससे नीचे रहेगा अगर उसका वेवलेंथ, तो भी कलर गायब हो जाता है. मतलब दिस इज कॉल्ड एज द विजिबल स्पेक्ट्रम. इसे कहते हैं विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम. इतना ही होता है जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं. बाकी उसको डिटेक्ट करने के लिए यू कैन यूज सम अदर मीन्स. फेक नोट डिटेक्टर में आप यूवी रेस वाला मशीन अप्लाई यूज करते हो, बराबर है क्या? फेक नोट डिटेक्ट के लिए. सो दिस हैज गॉट वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस. ऐसा सोचो कि एक दिन के लिए अगर सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बंद हो जाए, दुनिया बंद हो जाएगी, क्योंकि लाइट भी नहीं रहेगा उसमें. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? द होल यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू, तो अब हम बात करेंगे भाई हाइजीन बाबा क्या बोला. हाइजीन ने क्या बोला? हाइजीन बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस. एक होता है प्राइमरी सोर्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स कौन होता है? जो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है वो प्राइमरी सोर्स होता है. खुद लाइट प्रोड्यूस करने के 3 तरीके होते हैं. व्हाई? फर्स्ट थिंग इज बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर, जैसे सन, स्टार्स, ऑब्जेक्ट्स विच आर हीटेड टू हाई टेम्परेचर, फ्लेम एक्सेट्रा, बल्ब वगैरह. करेक्ट. दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ करंट विच इज पासिंग थ्रू ट्यूबलाइट, टीवी एक्सेट्रा, करंट की वजह से. तीसरा होता है एनी केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होता है, फायर क्रैकर्स, न्यूक्लियर. सो दीज आर द प्राइमरी सोर्सेस. इसके अलावा जो भी कुछ होता है वो सेकेंडरी सोर्सेस होता है. सेकेंडरी सोर्स ये नहीं, एक्चुअली मून की बात करेंगे अगर, तो मून इज नॉट सेकेंडरी सोर्स, इजंट इट? सो हमारे जो डे टू डे लाइफ में होता है, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, ये सब सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल? सो प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्स, दीज आर द 2 सोर्सेस ऑफ लाइट. ठीक है. अब नाउ वी कम टू द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ, ऐसा मान के चलो कि मेरे हाथ में भगवान ने स्पेशल पावर दी है. ठीक है, और मैं ये सपोज एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, व्हाटएवर, और यहां से जब लाइट निकलता है, तो जैसे एट t इज इक्वल टू 0 आई स्टार्ट स्टॉप वॉच. ठीक है,
और जैसे ही मैंने लाइट शुरू किया तो यहां से निकलने वाला लाइट कौन से डायरेक्शन में जाता है? ऊपर जाएगा। क्यों, राइट में नहीं जाएगा? हाँ, तो स्ट्रेट मतलब अगर मैं यहां पर एक बल्ब है, यहां पर एक बल्ब है, ऐसा नहीं है, बल्ब है, बल्ब, हाँ ऐसा बल्ब है, ये बल्ब है स्फेरिकल। हाँ, तो स्कैटर बोले तो कौन सी दिशा में जाएगा? ऊपर, नीचे, करेक्ट ना? तो इसने बोला कि जैसे ही लाइट इसमें शुरू हो जाता है, दिस लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये वेव्स कौन सी दिशा में जाएंगे? ऑल, मतलब राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, टेढ़ा जाएगा, मेढ़ा जाएगा, ऑल द डायरेक्शंस, इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, इजंट इट? अब जैसे ही ये लाइट जाना शुरू हो गया, कुछ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के बाद मैंने चीजों को फ्रीज किया। फ्रीज किया मतलब लाइट यहां तक गया एंड फ्रोजन। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड देयर टू बी सीन? विल दिस गिव राइज टू अ स्फीयर हियर? स्फीयर ऑफ लाइट। क्योंकि मैंने फ्रीज किया ना, मेरे को भगवान ने एक स्पेशल पावर दिया है मामू, मैंने उसको फ्रीज किया। सो विल दिस गिव राइज टू अ स्फीयर काइंड ऑफ थिंग? लाइट का बना हुआ स्फीयर दिखाई देगा आपको, यस और नो? वहां पर मैंने उस मोमेंट को फ्रीज किया है, करेक्ट? सो दिस स्फीयर इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। फिर मैंने उसको अनफ्रीज किया एंड विद इन फ्यू माइक्रो सेकेंड्स उसको दोबारा फ्रीज किया। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? स्फीयर का साइज बढ़ेगा। यार, जो यहां तक गया था उसको अनफ्रीज किया, फिर दोबारा फ्रीज किया, तो स्फीयर का साइज बढ़ेगा। दिमाग लगाओ ना, वही होगा ना, स्फीयर का साइज बढ़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो व्हाट इज दिस स्फीयर एक्चुअली डिपिक्टिंग? द स्फीयर इज डिपिक्टिंग all those particles of the medium where the light is reaching simultaneously. Yes or no? The sphere is depicting all these particles of the medium where the light is reaching simultaneously. That means those are the particles of the medium which are in the same phase of vibration because of the light. क्योंकि light is a wave and it makes the medium particles to vibrate. अभी अभी देखा हमने। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो इस तरीके से उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। उसको नाम दे दिया हमने आज। उसका क्या नाम दिया उसको? वेव फ्रंट। व्हाट इज अ वेव फ्रंट? दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वेयर द लाइट इज रीचिंग साइमल्टेनियसली। और ये जो वेव फ्रंट है उसका साइज हर मोमेंट, हर इंस्टेंट बढ़ता जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। लाइट अगर इस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है तो वो जो स्फीयर है वो बड़ा 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 होता जाएगा। हेलो, इज दिस ओके? समझ में आया सबको? सो व्हाट इज अ वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ वेव फ्रंट। डेफिनेशन पूछेंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा, मैंने लिख दिया है वहां पे। ओके, एक्सप्लेन आपको कर दिया मैंने। इट इज द locus of points where the light is reaching simultaneously. Any doubts about that? अगर हम रिपल्स करते हैं, रिपल्स, पानी के सरफेस के ऊपर अगर मैंने यहां पर एक छोटा सा कंकर फेंक दिया तो वहां पर रिपल्स आर फॉर्म एंड दिस रिपल्स आर इंक्रीजिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, बट दैट्स अ टू डायमेंशनल, क्योंकि ओनली एक्स और वाई एक्सिस होता है। लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया था बल्ब का, इट इज the light is traveling in all the three dimensions. Yes or no? So that will be the three-dimensional wavefront. Is that clear to all? And it will give rise to what is called as a spherical wave. It will give rise to what is called as a spherical wave. The three-dimensional waves का example है sound waves and light waves. जो मैं बात कर रहा हूं ये इधर सुनाई देगा, इधर भी, in all the directions. कोई ऊपर बैठा है उसको भी सुनाई देगा अगर बैठा होगा तो। यस और नो?
समझ में आ रहा है? सो इट्स अ 3 डायमेंशनल वेव. एग्जाम्पल, साउंड वेव, लाइट वेव. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? चलिए बात करते हैं यहां पे. दिस इज O इज द सोर्स ऑफ लाइट. वी कॉल दिस एज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट करस्पॉन्डिंग टू डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट. ओके, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट. और ये 3 स्फीयर्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? व्हाट आर दे रिप्रेजेंटिंग? At 3 different instances, the position of light at 3 different instances in the ascending order. मतलब T1, T2, T3. जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा. Yes or no? Is this clear? And what are these rays indicating? These rays are perpendicular to this wavefront, and these rays, they are actually indicating, this is called as ray of light. And this ray of light is actually giving us the direction of propagation of light. Direction of propagation of light. Is this clear to you all? Any doubts there? Is this very clear? इस स्फीयर का, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर धीरे 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 करता 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 बहुत बड़ा हो जाएगा. यस और नो? और उस बहुत बड़े स्फीयर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा मैं कंसिडर करता हूं. फिलहाल ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जैसे ये स्फीयर बड़ा होता जाएगा, बिकॉज दिस स्फीयर इज इंक्रीजिंग इन द साइज एट वेरी हाई स्पीड विद द स्पीड ऑफ लाइट. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में वो इतना बड़ा हो रहा है स्फीयर. बहुत फास्ट है रे बाबा. समझ में आ रहा है? तो जो इतू सा छोटा सा था, नाखून के इतना सा, उससे भी छोटा था, एक छोटा सा हिस्सा उसका, उसको जब ये स्फीयर बड़ा हो जाएगा, जब ये स्फीयर बड़ा हो जाएगा तो क्या ये इस प्रकार दिखेगा? अच्छा ठीक है, मैं आपको एक बात पूछता हूं. यू नो अर्थ इज स्फेरिकल. अर्थ इज स्फेरिकल. उस स्फेरिकल शेप का और उसका साइज कितना होता है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? 6400 किलोमीटर. बहुत ही बड़ा है ना? और उस अर्थ के ऊपर एक बहुत छोटा सा पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूं तो दैट मे रिप्रेजेंट अ सिटी, या उससे छोटा सा पॉइंट. तो मैं बोलता हूं कि भाई उसने एक ग्राउंड रिप्रेजेंट किया. तो ये जो ग्राउंड है वो अपने को फ्लैट क्यों दिखता है? क्योंकि अगर वो इसके ऊपर है तो ऐसे राउंड दिखना चाहिए ना मेरे को. तो ग्राउंड आपको फ्लैट क्यों दिखता है? नहीं 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 नहीं, लाइट का कुछ नहीं, कुछ भी मत बोल. एक बहुत बड़ा स्फीयर का एक बहुत छोटा हिस्सा अगर आप लेते हो और उसको मैग्नीफाई करके देखते हो तो दिस विल बी सीन एज अ प्लेन. समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? चलिए मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. देखिए, ये बहुत बड़ा सर्कल है और इसका एकदम छोटा सा हिस्सा मैं कंसिडर करूं, इतना सा हिस्सा, और इसको मैग्नीफाई करके देखूं तो क्या मुझे वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा? रुकना रुकना रुकना. क्या वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा? दिखेगा ना? ये स्फीयर है. इस स्फीयर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा मैं कंसिडर करूंगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. अगर उसको मैं मैग्नीफाई करके देखूंगा तो क्या वो मुझे एक स्ट्रेट, मतलब एक कर्व्ड सरफेस यहां पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा. इट विल नॉट बी सीन एज अ कर्व्ड सरफेस, नॉट एट ऑल. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो वही चीज यहां पर होगी कि भाई स्फेरिकल वेवफ्रंट का बहुत छोटा सा हिस्सा अगर हम निकालें तो वो आगे जाके एक प्लेन बन जाता है जिसे हम प्लेन वेवफ्रंट कहते हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? और यहां पर अगर मैं प्लेन वेवफ्रंट कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पर जाने वाले सारे रेज ऑफ लाइट होंगे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. यस और नो? समझ में आ गया? एक्चुअली दिस कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट सन जो होता है, सन दिस इज द सन, और यहां से निकलने वाले रेज ऑफ लाइट जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं.
लेकिन सन के कंपैरिजन में जो अर्थ होता है वो बहुत छोटा होता है। तो अर्थ पर आने वाले, इसलिए अर्थ पर आने वाले जो रेज ऑफ लाइट, अगर अर्थ को हम बड़े पैमाने पर देखें तो वी ऑलवेज कंसिडर दैट द रेज ऑफ लाइट व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द सन आर पैरेलल। व्हाई आर दे पैरेलल? एक्चुअली वो रेडियली आउटगोइंग होनी चाहिए, यस और नो, बट बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, दूर आते आते आते, और उसका छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा हम होते हैं, उसको अगर हम देखें तो वो अपने को पैरेलल दिखते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर? इज दिस ओके? सो स्फेरिकल वेवफ्रंट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो बड़ा होने के बाद अपने को पैरेलल वेवफ्रंट की तरह दिखेगा। तो दीज रेडियल लाइंस आर गोइंग टू बी सीन एज अ पैरेलल लाइंस हियर। सो दिस इज द रे ऑफ लाइट एंड हेंस दिस इज द direction of propagation of light. Is this clear to you all? Am I clear to you everybody? These rays of light, these arrows, they are indicating the direction of light propagation. Is this okay? Any doubts about this? Is it very clear? Well, let us proceed further. तो ये तो सिर्फ हमने ग्राउंड वर्क कर लिया हाइजेंस वेव थियोरी का। हाइजेंस वेव थियोरी एग्जैक्टली क्या है वो अभी हमें पता चल जाएगा आगे। हाइजेन बोलता है कि द लाइट इज प्रोपागेटिंग इन ईथर, एंड उसने ईथर मीडियम एज्यूम किया था। बाद में वो बाकी चीजें, ईथर, बाकी चीजें सब सही थी, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, कुड नॉट बी प्रूव्ड। बाकी जो बोल रहा था वो सब सही था, ठीक है। उसने बोला कि लाइट जैसे जैसे ट्रैवल होता है, नो आई विल गो बैक टू माय एक्सपेरिमेंटेशन, जो मैं एक्सपेरिमेंटेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा था वहां पर मैं दोबारा चला जाता हूं। दिस इज अ बल्ब, अ स्फीयर इन माय हैंड, और यहां से मैंने जैसे ही लाइट चालू किया तो लाइट इज ट्रैवलिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो एक मोमेंट है जहां पर मैंने उसको फ्रीज किया तो लाइट यहां तक पहुंच गया है, तो यहां पर एक आपको लाइट का स्फीयर बना हुआ दिखाई देगा, यस और नो? दिस इज कॉल्ड एज द स्फेरिकल वेव फ्रंट, हम इसे कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। हाइजेन ने बताया ईच पॉइंट ऑन दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट, वी कॉल दिस एज अ वेव फ्रंट, each point on the wavefront behaves as the secondary source of light and it gives the secondary wavefronts. ऐसा उसने बताया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए I'll explain you, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है माथे को, कोई टेंशन नहीं है। I'll just explain it to you, hold। उसने क्या बताया कि भाई अगर ये है सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, तो यहां से वेव्स निकले, यहां से वेव्स निकले, हम बात करेंगे कि भाई द वेव्स आर ट्रेवलिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, समझो कि इधर जा रहे हैं, तो ये वेव फ्रंट बड़ा होता जा रहा है, समझो कि लाइट यहां तक पहुंच गया, 1 2 और 3। आई विल कंसिडर ओनली 3 पॉइंट्स फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लाइट यहां तक पहुंच चुका है, द मोमेंट इज फ्रोजन। जैसे ही लाइट यहां पहुंचता है, दीज आर द पॉइंट्स ऑन दिस वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर ये पॉइंट्स है, उसको वेव फ्रंट बोलेंगे या प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी। जैसे ही लाइट यहां पर पहुंचता है, हर एक पार्टिकल इसके ऊपर जो होता है, इट बिकम्स द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, इट बिकम्स द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। और जैसे ही हम मोमेंट को अनफ्रीज करते हैं, मोमेंट को अनफ्रीज करते हैं, ये खुद सेकेंडरी सोर्स बनेगा और ये अपने यहां से क्या एमिट करता जाएगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। दीज आर द सेकेंडरी वेवलेट्स। एवरी पार्टिकल इज डूइंग द सेम। मैंने सिर्फ 3 पार्टिकल कंसिडर किए हैं, एवरी पार्टिकल हियर डज द सेम। तो ये था एट टाइम टी इज टी, और ये जो नया वाला पोजीशन है, देखिए ये जो था ABC जो पोजीशन था ना वेव फ्रंट का, वो कौन से टाइम पे था, एट t इज इक्वल टू 0 कहां था वो लाइट, कैन यू प्लीज टेल मी द डिटेल्स। द लाइट वाज एट S व्हेन इट वाज t इज इक्वल टू 0, द लाइट इज एट ABC व्हेन t इज इक्वल टू t, और अगले कुछ क्षणों में, मतलब एट t प्लस डेल्टा t इंस्टेंट, द लाइट विल बी एट दिस नया वाला पोजीशन। तो नया पोजीशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट इज फाउंड आउट बाय ड्राइंग द कॉमन टेंजेंट और कॉमन एनवलप्स टू ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, उनको एक मैं कॉमन टेंजेंट या कॉमन एनवलप ड्रॉ करूंगा, तो मुझे पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट मिल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन हियर? आई रिपीट दीज थिंग्स वंस अगेन, ठीक है। देखिए S इज द सोर्स ऑफ लाइट, एट t इज इक्वल टू 0 लाइट यहां से शुरू करेगा ट्रैवल करना,
at t is equal to t, the light has reached at position ABC. The light has reached at position ABC. ठीक है. After delta t बोलिए या t plus capital T बोल सकते हैं. After delta t time. Now what is the speed of light? C is the speed of light. It is equal to distance upon time. So what distance will it cover? It will cover the distance is equal to c into delta t. Yes or no? c into delta t. इतना distance वो cover करेगा. बराबर है कि नहीं है? So यहाँ पर light, this will become the secondary source of light. This will also become secondary source. This will also become the secondary source of light, and it will give out the secondary wavelet just like what this source S was doing. So in that very small time, यहाँ से जो secondary wavelet निकलेगा वो इस तरह बनेगा. यहाँ से निकलने वाला इस तरह बनेगा. यहाँ से निकलने वाला इस तरह बनेगा. By the way, हम पीछे की तरफ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, but the light will always travel in the forward direction. इसलिए the wavelet which is in the forward direction in the direction of propagation is effective. Opposite direction वाला जो wavelet है वो ineffective होगा, इसलिए हम उसको ड्रॉ नहीं करेंगे. Did you understand what I said? So नया position इस wavefront का जो होता है at the instant t plus delta t, it is obtained by drawing the common tangent or common envelope to all these secondary wavelets. ये समझ में आ गया क्या? Did you understand what I explained here? So this is called as Huygens construction. Question पूछा जा सकता है HSC के अंदर. Explain Huygens construction for plane wavefront and for spherical wavefront. तो ये है Huygens construction for plane wavefront. What do we call this as? Huygens construction. जिसमें ये पार्ट है प्लेन वेवफ्रंट का. हाँ, ये रहा प्लेन वेवफ्रंट, इसने लिखा है यहाँ पे. दिस इज द हाइजेंस कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेवफ्रंट एंड हाइजेंस कंस्ट्रक्शन फॉर द स्फेरिकल वेवफ्रंट. ये जो अभी मैंने आपको बता दिया वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की है. ठीक है. ए बी सी ऐसे बहुत सारे, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं, बट आई थिंक 3 अगर ड्रॉ करेंगे तो भी ठीक है. इफ आई विल टेल यू टू ड्रॉ द हाइजेंस कंस्ट्रक्शन फॉर द प्लेन वेवफ्रंट, तो कैसे होगा वो हाइजेंस कंस्ट्रक्शन फॉर द प्लेन वेवफ्रंट? कैन यू प्लीज टेल मी कि भाई यहाँ पर मैं एज्यूम करूंगा दिस इज द प्लेन वेवफ्रंट एट एनी इंस्टेंट. उसके ऊपर के 3 पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे. कौन से? दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. दिस इज द पोजीशन ऑफ द प्लेन वेवफ्रंट एट एनी इंस्टेंट टी. ठीक है. जैसे ही लाइट यहां पर पहुंच जाता है, एवरी पॉइंट ऑन दिस वेवफ्रंट बिकम्स द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इट विल स्टार्ट गिविंग आउट द सेकेंडरी वेवलेट्स. फॉर द सिंप्लिसिटी वी विल कंसिडर ओनली 3 पॉइंट्स ए बी सी. तो यहाँ पर A, B, C, they becomes the secondary source of light. They will start giving out the secondary wavelets at time t plus delta t. मतलब आफ्टर यहाँ से कितना डेल्टा टी टाइम के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू c इंटू डेल्टा टी. इतना ट्रेवल करेगा. सो यहाँ से c इंटू डेल्टा टी इतने रेडियस के मुझे सेमी सर्कल्स या एक्चुअली हेमिस्फीयर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे. These are seen to be semicircles, but these are actually hemispheres. Do you understand what I'm saying there? Isn't it? And इस wavefront का नया position, the new position of this wavefront is obtained by drawing a common tangent or common envelope to all these. तो यहाँ से एक common tangent अगर हम draw करें, so that will give me the position of this. ये उसका नया पोजीशन है. सो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द प्लेन वेवफ्रंट. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है. बस यही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द हाइजेंस कंस्ट्रक्शन जिसमें हम हाइजेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो अब हाइजेंस प्रिंसिपल को रीड करते हैं. लेट अस रीड व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल. Each point on a wavefront acts as the secondary source of light, emitting secondary light waves called as wavelets. Secondary waves are called as wavelets in all the directions which travel with the speed of light in the medium. The new wavefront can be obtained. The second part of this is the new wavefront can be obtained by taking the envelope, matlab common tangent, envelope of these secondary wavelets traveling in the forward direction. सिर्फ forward direction, reverse direction में नहीं. And thus the envelope of the secondary wavelets in forward direction, the wavelets traveling in the backward direction are ineffective.
इज दिस क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ गया आपको ये? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है, सो दिस इज हाइजेंस कंस्ट्रक्शन. मुझे लगता है ये वाला जो पार्ट है मुझे इसको अलग से लिखना पड़ेगा. दिस विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. ठीक है, ये जो पहला वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है. So let us consider, they'll say explain the reflection of light at the plane surface using Huygens principle या Huygens wave theory. First I'll explain you this diagram, the development of this diagram, and then I'll explain you how to draw the diagram. Did you understand what I said? पहले मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर डायग्राम को कैसे डेवलप करते हैं वो बता दूंगा. तो द फर्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये. फर्स्ट लेट्स हैव अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ये रहेगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ मिरर. ठीक है, ये Mn, दिस इज दैट मिरर. और इसके ऊपर द लाइट इज इंसिडेंट, द प्लेन वेव फ्रंट ऑफ द लाइट. प्लेन वेव फ्रंट ऑफ द लाइट मतलब द लाइट इज समथिंग लाइक दिस. यहां पर है वो सोर्स ऑफ लाइट, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है. ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट है. इसका मतलब है कि यहां पे जो आने वाला लाइट है इट इज ट्रेवलिंग लाइक दिस. दिस इज दैट रे ऑफ लाइट. समझ में आ गया? अभी अभी हमने देखा था कि जो रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगा वो इस तरह से ट्रैवल करेगा, ऐसे. तो ये एक रे है और ये एक रे, एंड दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट व्हिच इज अप्रोचिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर? हेलो हेलो हेलो, ये प्लेन वेव फ्रंट है. इस वेव फ्रंट के जो वेरियस पोजीशंस होंगे, ये थोड़ी देर के बाद ये वेव फ्रंट इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा. ऐसा होते होते यहाँ पर वो वेवफ्रंट वो यहाँ पर ऐसे चला आएगा. सो दिस इज पॉइंट ए एंड बी. इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसा कहते हैं कि भाई ये जो लाइट है वो ऐसा ट्रैवल करते करते यहाँ तक पहुंच गई. तो अब आप मुझे ये बताइए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. समझ में आ गया क्या? और ये राइट एंगल होगा. मैं बोलूंगा दिस इज द वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट बाय प्लेन वेव फ्रंट? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट बाय प्लेन वेव फ्रंट? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट बाय प्लेन वेव फ्रंट? और ये रे ऑफ लाइट है वो उसको परपेंडिकुलर होते हैं. So these are the ray of light. Actually there are infinitely many ray of light, but for the simplicity and for better understanding we are considering only the extreme rays. Is that okay? तो ये वेव फ्रंट पहले पॉइंट ए तक पहुंच जाता है, मतलब ये वाला रे ए तक पहुंच जाता है, लेकिन ये जो दूसरा है, सो दिस इज कॉल्ड एज आर ए. दिस इज द इंसिडेंट रे, और ये भी दूसरा इंसिडेंट रे ही है. तो एक इंसिडेंट रे पहुंच चुका है, दूसरा इंसिडेंट रे रास्ते पर है, यहां तक ही पहुंचा है, उसको आगे इतना डिस्टेंस कवर करना है. एंड दिस इज एट राइट एंगल. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? लेकिन जब तक ये रास्ते पर है तो क्या ये चुपचाप बैठेगा इधर? नहीं, मेरा भाई जो है वो अभी रास्ते पर है तो मैं तब तक चाय पी लेता हूं ना. दिस बिकम्स द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इट विल गिव आउट द सेकेंडरी वेवलेट्स. नहीं, every point on the wavefront becomes, सुनना, every point on the wavefront becomes the secondary source of light. Every point on the wavefront. समझ में आ गया?
सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है वो, एंड इट विल गिव आउट द सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इसको आगे यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? 10 मिनट, पता नहीं, टी कितना टाइम लगेगा उसको? टी, एंड इट इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड c. So what is the distance it covers? D is equal to sit t। समझ में आ गया? तो ये टाइम t में डिस्टेंस कवर करेगा, D is equal to sit t। सो जब तक ये साहब इधर आते हैं तब तक ये शांत नहीं बैठेंगे। ये बन चुके हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, एंड इट विल गिव आउट द सेकेंडरी वेवलेट, एंड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सेकेंडरी वेवलेट? इक्वल टू sit t। आई रिपीट, पहला वाला रे यहां पहुंचा, दूसरा वाला रे रास्ते पर है क्या? रास्ते पर। इसको आगे जाने को कितना टाइम लगेगा? t। डिस्टेंस कितना कवर करेगा? d इज इक्वल टू sit t। तब तक ये क्या करेगा? चाय पिएगा, वड़ा पाव खाएगा? नहीं, व्हाट विल इट डू? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, एंड इट विल गिव आउट द सेकेंडरी। अच्छा, उसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बनने के लिए कोई टाइम नहीं लगता, इंस्टेंटली बन जाता है वो, हैया, एंड इट विल गिव आउट। तो इसका जो रेडियस है, समझो ये इधर तक आ गया, तो इसका जो सेकेंडरी सोर्स का सेकेंडरी वेवलेट इतना होगा, ये इधर से, तो ये और उस टाइम में बड़ा हो जाएगा। तो ये जब से यहां पर यहां तक आता है तो इसका जो रेडियस है वो कितना होगा रे बाबा? इज इट इक्वल टू दिस डिस्टेंस? वही पूछ रहा मैं, समझ में आया? अच्छा, अभी और एक मजे की बात यहां पर है, बहुत मजा है इसके अंदर ना। और एक मजे की बात है कि समझो कि यहां पर और एक बीच वाला हम अगर रे ऑफ लाइट कंसिडर करें, तो इसके थोड़ी देर बाद ये वाला पहुंच गया इधर है। हाँ, ये भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बनेगा, और इसका रेडियस होगा इतना। कितना? इतना। बराबर है क्या? समझ में आया? तो सब्सिक्वेंटली इसके बाद जो जो पॉइंट्स यहां पर है, दे विल बिकम द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड विल गिव आउट द सेकेंडरी सोर्सेस, सेकेंडरी वेवलेट्स। और जब तक ये इधर जाता है, यहां तक पहुंच जाता है, तब तक ये जो बीच के जो है ना, उसके जो सेकेंडरी वेवलेट्स का रेडियस कम 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 होता जाएगा। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसका सेकेंडरी सोर्स वो अभी अभी बन चुका है, तो उसका सेकेंडरी वेवलेट का रेडियस होगा 0। हेलो, उसका सेकेंडरी सोर्स का रेडियस होगा 0। अब बारी है नेक्स्ट स्टेप ऑफ हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। आई वांट टू ड्रॉ, ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था उसका नया पोजीशन कैसे होगा? हाउ विल इट बी इट्स न्यू पोजीशन? ड्रॉ द कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट इंस्टेंट। समझ में आ गया? सो आई हैव टू ड्रॉ, तो ये है पहला वाला जो है उसका, दिस इज द रेडियस। बराबर है क्या? अब जो दूसरा वाला है उसका ये रेडियस है। दूसरा मतलब एक्चुअली देयर आर इनफाइनेटली मेनी, लेकिन मैंने सिर्फ 2-3 ही कंसिडर किए हैं। उसका अगला वाला है, उसका ये रेडियस है, करेक्ट? और ये लास्ट वाला है, उसका 0 रेडियस है। सो टेल मी व्हाट शुड आई डू टू ड्रॉ? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेगा। अरे भाई, जो कि यहां पर उन्होंने ड्रॉ किया है। समझ में आ गई बात? और फिर यहां पर मुझे मिलेगा उसका नया पोजीशन। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये था इंसिडेंट और ये गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इज दिस क्लियर टू ऑल? दिस वाज एक्सप्लेनेशन, ये आपका एक्सप्लेनेशन था। समझ में आ गई बात? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन हियर? तो यहां पर मैंने पहले पूरा डायग्राम है, फिर उस डायग्राम का मैंने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे उसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इज दिस क्लियर टू ऑल? हाँ, वैसे ही जाएंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट, वैसे ही जाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली इस फिनोमिनन को वेव थियोरी से एक्सप्लेन किया उसने। क्या होता है वो सबको दिख रहा था। ऐसा नहीं कि हाइजेन ने बताने से पहले लोगों ने आईना नहीं देखा था, मिरर नहीं देखा था, रिफ्लेक्शन सब देखा था, लेकिन उसने व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग देयर, ही एक्सप्लेन्ड इट विद द हेल्प ऑफ हिज वेव थियोरी। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? तो यहां पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहां पर इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? ये
ओरिजिनल डायग्राम, ये उसका डेवलपमेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है। डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दिस इज सॉरी ब्लू वाला लाइन है, दिस इज अ ब्लू लाइन, और ये है रेड वाला लाइन। अब मैं ब्लू लाइन को ब्लू लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। इस ब्लू लाइन को परपेंडिकुलर ये वाला ब्लू लाइन है, और ये जो रेड वाला या पिंक वाला लाइन है उसको परपेंडिकुलर, वर्टिकल का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल। यस और नो, यस और नो, बरोबर है। अच्छा, एंगल बिटवीन ब्लू एंड रेड इज आई, देन एंगल बिटवीन ब्लू एंड रेड विल आल्सो बी आई। प्रॉपर्टी की तरह आप इसको याद रखो, एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर। देखो ना, पहला वाला लाइन है उसको मैं लाइन 1 बोलूंगा, और जो दूसरा लाइन है उसको लाइन 2 बोलूंगा। तो ब्लू का परपेंडिकुलर ब्लू, इसे मैं 1 बोलूंगा, राइट, और पिंक का परपेंडिकुलर प्लस। तो 1 एंड 2 का एंगल अगर आई है तो 1 एंड 2 का एंगल आई होगा। सिंपल है, याद रहेगा। आप प्रूव कर सकते हो इसको, लेकिन आपको इस प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा। आई कैन प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बट आई विल नॉट गो इन दोस डिटेल्स। एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव, बस ये प्रॉपर्टी याद रखो। समझ में आ गया? मैंने बोला समझ में आ गया। तो यहां पर अगर दिस एंगल इज आई तो दिस एंगल इज आई, यस और नो? हेलो हेलो हेलो, करेक्ट। अच्छा, ये वर्टिकल है, ये उसका परपेंडिकुलर, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका परपेंडिकुलर इधर है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर ये आर है तो कौन सा आर होगा? विल दिस बी आर? देखिए ना, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 1 का परपेंडिकुलर 1 एंड 2 का परपेंडिकुलर 2। इज दिस ओके? समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। ये प्रॉपर्टी आपको कई बार यूज करनी पड़ेगी, इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद यही आप लॉजिक लगाओगे। यही लॉजिक आपका हुआ करता था फ्रिक्शन के अंदर, इंक्लाइंड प्लेन। यू रिमेंबर, एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर। इफ यू रेफर द वीडियोस ऑफ फ्रिक्शन, एनसीईआरटी 11th फिजिक्स, उसमें हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन। दिस इज अ प्रूफ, दिस इज अ डेरिवेशन। ओके, ये प्रूफ है, ये डेरिवेशन है। चलिए देखते हैं यहां पे। तो ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2 है, जैसे कि एयर और वाटर, एयर एंड ग्लास, ठीक है, कुछ भी। तो दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन, हाँ, तो जैसे ही ये लाइट इधर पहुंच जाएगा, एज सुन एज, चेक हियर, तो जैसे ही लाइट यहां पर पहुंच जाता है, जैसे ही लाइट यहां पर पहुंच जाता है, यहां पर चलने वाला जो रे ऑफ लाइट है, इट्स ऑन द वे, तो उसको इधर से इधर जाने को कितना टाइम लगेगा? t, ठीक है। लेट मी से, अगर ये मीडियम 1 है तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 इज v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2 इज v2। तो ये मीडियम 1 में है, तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए लगेगा? डिस्टेंस कितना रहेगा? ये d इज इक्वल टू v1 इंटू टी, यस और नो? बिकॉज वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो v1 इज इक्वल टू d अपॉन टाइम t, यस और नो? सो d इज इक्वल टू v1 t। समझ में आ गया? इस दौरान ये जो पॉइंट है, this becomes the secondary source of light and it will give out the secondary wavelets in the second medium। बराबर है? अब ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो उतने ही टाइम में ये शांत नहीं बैठेगा, इट विल गिव आउट द सेकेंडरी वेवलेट्स, एंड व्हाट विल बी दैट डिस्टेंस कवर्ड? d2 इज इक्वल टू v2t। समझ में आ गया? तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू v2t। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? पहले छोटा होगा, फिर छोटा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सब्सिक्वेंटली यहां पर जहां जहां भी लाइट पहुंच रहा है,
वो भी सेकेंडरी वेवलेट्स देता जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? यहां जहां कहीं लाइट पहुंचते जा रहा है, जहां जहां लाइट उसके बाद पहुंचेगा ना, तो दिस विल आल्सो गिव आउट द सेकेंडरी वेवलेट इन द अदर मीडियम. तो जैसे ही लाइट यहां पर पहुंच जाता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट हियर? 0, क्योंकि अभी अभी लाइट पहुंचा है वहां पे. So what will be the position of the new wavefront, refracted wavefront? I will draw the common tangent to all these secondary wavelets. So this EC will be the refracted wavefront. Is that clear? Understood? ठीक है. सिर्फ यहां पर उसका स्पीड ऑफ लाइट कम है, इसलिए ये डिस्टेंस v1t जो है वो ज्यादा होगा इसके मुकाबले. Is that clear? क्योंकि उधर जाके उसका स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है. एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. चलिए, अगर ये है लाइन नंबर 1 और ये है लाइन नंबर 2, तो 1 का परपेंडिकुलर क्या होगा? ये, करेक्ट ना? और 2 जो कि वर्टिकल है उसका परपेंडिकुलर होगा हॉरिजॉन्टल, तो ये I1 होगा. यस और नो? दिस एंगल बिटवीन 1 and 2 इज एंगल बिटवीन 1 and 2. समझे? दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. अब आप मुझे बताइए कि अगर ये है 2 और ये है 1, तो 1 का परपेंडिकुलर ये 1 है. यस और नो? और 2 का परपेंडिकुलर 2. सो एंगल बिटवीन दिस 2 इज इक्वल टू एंगल बिटवीन दिस. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर्स. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस टेक दिस फर्दर. आगे बढ़ते हैं. अरे डेरिवेशन खत्म कर लूंगा मामू, मैं थोड़ी सभी चुप बैठूंगा ना. नाउ आई हैव टू मेक यूज ऑफ दिस डायग्राम फॉर डिराइविंग सम. डेरिवेशन मतलब 2-3 स्टेप का डेरिवेशन है, खत्म कर लेते हैं, देन वी स्टॉप हियर टुडे. ओके, लेट्स टेक हियर. अब यहां पे मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूंगा. इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ABC क्या आएगा रे बाबा? इन ट्रायंगल ABC, कैन यू टेल मी व्हाट इज sin I इज इक्वल टू? sin I इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AC. यू सी? गुड टू सी. सो दैट इज व्हाट इज BC इज इक्वल टू? इज दैट V1 इंटू T, बराबर है ना, अपॉन AC. ठीक है, नहीं V2 नहीं, AC. अच्छा, सिमिलरली आई कंसिडर ट्रायंगल AEC नाउ. ट्रायंगल AEC, उसमें व्हाट इज sin R इज इक्वल टू? sin R इज इक्वल टू अपोजिट साइड AE अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC. सही है. नाउ व्हाट इज AE इज इक्वल टू V2T, इट इज V2T अपॉन AC. इज दैट क्लियर? और अब मैं यहां पर कंसिडर करूंगा sin I अपॉन sin R, स्नेल्स लॉ. sin I अपॉन sin R. So when I'll take sin I upon sin R, what am I going to get there? V1T upon V2T, T cancel. So this is equal to speed of light in the first medium to speed of light in the second medium. ये वाला पार्ट प्रूव हो गया, बराबर है? Isn't it? अब इसको मैं रीअरेंज करूंगा. कैसे? कैन आई राइट दिस एज C अपॉन V2 डिवाइडेड बाई C अपॉन V1. देखो ना, बात तो एक ही आएगी. ना? ए नहीं, C नहीं, V1 है वो. किसने बोला? मैं बोलता हूं ऊपर पानी है, नीचे ग्लास है, बराबर है ना? इधर पानी है ऊपर और इधर ग्लास है. ऐसा भी हो सकता है. ग्लिसरीन है, केरोसिन है, ऑयल है, बराबर है ना? डायमंड नहीं, बहुत महंगा है. नाउ दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या लिखा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. यू नो, so this is refractive index of medium 2 upon refractive index of medium 1. You know, multiplying we get, cross multiplying, this will become n1 sin I is equal to n2 sin R. अरे हाँ, ये तो वो है. Is that, ये प्रूफ है.
अब इसमें कितना क्या प्रूफ है, इसको प्रूफ बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? लेट्स गिव द फाइनल टच टू दिस। Thus during oblique incidence, ये जो भी हमने बात करी थी, this was the oblique incidence. So what happens in the oblique incidence? Thus during the oblique incidence, या बाबा किधर जा रहे हैं? हाँ, the refracted ray will travel, कहाँ travel करेगा वो? Will bend towards the normal. The refracted ray will bend towards the normal while going from optically rarer medium to optically denser medium. ये अपने को ऑलरेडी पता है। अरे तुमको पता है, लेकिन एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि ये तुमको पता है, इसके लिए लिखना पड़ेगा बाबा। हाउ वुड द एग्जामिनर नो दैट यू नो दिस? तो इसमें क्या लिखने का, देखिए, दिस इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो द रे इज गेटिंग बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये तुमको पता है, बोले ना तुम, तो लिखने का, क्योंकि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डेरिवेशन। नहीं, लेकिन उसको पता चलना चाहिए कि तुमको भी पता चल गया है। ओके, while entering the rarer medium from the denser medium, it bends away from the normal. तो नाचने का नहीं, पता है, लिखने का वो सही रहेगा। ओके, and what happens at the normal incidence? No bending. At the normal incidence कभी क्या होता है? It will travel straight further. समझ में आ गया? So the rays will travel in the same direction. That's it. हाँ?